ایک بہت خوبصورت شہر میں ایک غریب میاں بیوی کی ایک بہت خوبصورت بیٹا ہوا جس کے کان کے نیچے شاہی مہر تھا، اور اس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ یہ بہت بڑا شخصیت کا مالک ہوگا، اور یہ سلطان کی بیٹی سے شادی کرے گا اور بہت عظیم شخصیت ہوگا، اپنے ماں باپ کی خوشی کا سبب بنے گا۔ اور اس کے ماں باپ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماں باپ بہت غریب ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں اور زمین میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات جیسی والے اس جگہ کے بادشاہ کو پتہ چلی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا کہ وہ بچہ بھی ہوا ہے جس کے کان کے نیچے شاہی مہر کا نشان ہے، اور وہ میرے بیٹے سے شادی کرے گا، وہ غریب کا بچہ۔ تو وہ بہت آگ ببولا ہو گیا اور ترکیب سوچنے لگا۔ وہ ایک تاجر کا شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ وہاں اس غریب کے گھر میں آ جاتا ہے اور 2 بوریاں سونے سے بھر کر اسے دینے لگتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ ہمیں دے دو، یہ سارا سونا لے لو۔ تو وہ غریب اس کو تھوڑے سوچتے ہیں مگر اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو یہ بچہ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت غریب ہوتے ہیں جس کو ان بچے کو جو سہولت دستیاب ہونی تھی یہ ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ اس بچے کا نام روک تھا، اس ماں باپ نے اس کا نام روک رکھا تھا، تو وہ اس کو بہت ناراض ہو جاتے ہیں مگر اسے دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی سہولت ہے ہی نہیں کہ یہ تاجر اس کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے بہت خوش رکھوں گا اس کے پاس۔ تو وہ تو تاجر نہیں ہوتا، وہ تو بادشاہ ہوتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ وہ ایک بہت گہرے جنگل میں اس بچے کو لے آتا ہے اور وہاں ایک گاڑی میں اس کو رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس گاڑی میں پڑا ہوگا، کوئی جنگلی جانور اس کو کھا لے گا، اور خوب ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اب کوئی نہیں ہوگا جو میرے بیٹی سے امیر شخص شادی کرے گا، یہ غریب نہیں، اور یہ میرے سلطان کو نہیں چھین سکتا میرے سے۔ تو وہ بہت خوش ہوا، ہنسنے لگا، کہہ دیا کہ میں نے اس کو ابھی یہ آج رات ہی اس کو کوئی کھا جائے گا، اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں ہی وہ جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو دو آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں، ایک عورت اور ایک آدمی۔ تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو نہ کوئی بیٹا ہے، اس کو ہم اپنے بیٹا رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ اسے اٹھا لیتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج سے یہ ہمارا بیٹا ہو گیا، کیونکہ ہمارا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ تو وہ دونوں اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ تو بہت عرصہ گزرنے کے بعد وہ ابھی بڑا ہو چکا تھا اور وہ روک بہت بڑا ہو چکا تھا۔ تو وہ جنگل میں گھومنے لگتا ہے اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ تو وہ بادشاہ کسی جگہ جانے لگتا ہے، تو وہ جیسے ہی اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا بادشاہ کا غلام اس روک سے راستہ پوچھنے لگتا ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے، مگر جیسے اس کے پیچھے بادشاہ بھی تھا، وہ بادشاہ دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے کان کے نیچے تو ویسے ہی شاہی مہر کا نشان ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو تو میں نے ایک گاڑی میں چھوڑا تھا اور یہ آج زندہ کیسا ہے۔ تو بادشاہ بہت ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کو تو میں نے ایک گاڑی میں چھوڑ رکھا تھا۔ تو بادشاہ اس روک کو کہتا ہے کہ تم میرا ایک بہت ضروری آدیش محل تک پہنچا دو گے، بہت ضروری ہے، میں ابھی محل نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے کسی جگہ جانا ہے۔ تو وہ روک کہتا ہے کہ کیوں نہیں، میں بہت جلدی پہنچا دوں گا، آپ مجھے صرف دے دیں۔ تو وہ کہنے لگتا ہے بادشاہ کہ ہاں میں آپ کو خط دے دیتا ہوں، مگر وہ کہتا ہے بادشاہ کہ اگر آپ اس کو کھولے گی نہیں، یہ آپ نے نہ راستے میں کھولنا ہے، وہاں جا کے صرف وہاں دے دینا ہے، پھر آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کھولنا۔ تو وہ اس خط کو جانے لگتا ہے اور اپنا سفر شروع کرنے لگتا ہے، مگر اس کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ چھلانگیں شروع کرتا ہے اور دوسری طرف جانے لگتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو بہت آوازیں دیتا ہے مگر وہ غلط طرف جانے ہی لگتا ہے۔ تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور بہت گہرے جنگل میں جانے لگتا ہے۔ تو شام بھی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ یار ابھی یہ تو شام بھی ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں گا۔ تو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ آس پاس کوئی گھر ہے یا نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو وہاں باندھ لیتا ہے
और जाने लगता है। देख लेता है तो उस जंगल में वो गहरा जंगल था। गहरे जंगल में एक बहुत खूबसूरत घर भी था। और छोटा सा वो घोड़े से उतर जाता है और वहाँ नॉक करता है तो वहाँ एक चोर तो नहीं था, उसके बारे में अफवाह थी कि ये बहुत बड़ा चोर है, लोगों को मारता है। तो वो रोको से कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो उसे कहता है क्यों नहीं, तुम अंदर आओ। तो वो कहने लगता है मैं सिर्फ एक रात गुजारूंगा, मुझे यहाँ एक रात की पनाह मिल सकती है। तो वो उसे कहता है तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे देख के डरे नहीं। तो वो कहने लगता है नहीं, मैं क्यों डरूंगा। तो वो कहने लगता है मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं लोगों को मारता हूँ और चोरी चकारी करता हूँ, तो मैं इस बात से कोई खौफ नहीं। वो कहता है मैं लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, वो लोग आपके अफवाह फैलाए हुए हैं। ये भी कहता है उसे कि हाँ मैं ये चोरी कोई और करता है और सारा इल्ज़ाम लोग मुझ पे लगा लेता है। लोगों से कहता है मैं सारे लोगों से मोहब्बत करता हूँ, अगर वो कोई भी हो। तो उसके बाद ये सुनकर वो चोर जो होता है वो चोर नहीं होता, मगर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आ जाओ, तुम यहाँ रह सकते हो। और ये लड़के, मैं तुम्हारे बातों से बहुत मुतासिर हुआ, आप मुझे बहुत अच्छी लगे। वो दोनों खूब खाना खा लेते हैं और वो उसे कहता है रोक के मुझे बादशाह ने एक ज़रूरी पैगाम के लिए भेजा था है महल के लिए। उसे शक हो जाता है कि बादशाह इस मामूली इंसान पे क्यों ये लिफाफा भेजेगा। वो उसे उठा लेता है और वो पढ़ने लगता है कि इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा होता है कि इस रोग को हमेशा के लिए कैद खाने में डालो। तो इसमें वो चोर को बहुत गुस्सा आता है, इतनी शरीफ इंसान को। वो उसका उसमें लिख लेता है कि जल्दी ही बादशाह की बेटी का इससे निकाह कर लो। और वो दूसरा हाथ फाड़ लेता है और इस पर फिर मुहर लगा देता है, उसके जेब में रख लेता है। और वो सुबह रवाना हो जाता है महल। जब वो पहुंचता है तो वो उस खत महारानी को दे देता है कि ये देखो, ये मुझे दिया है बादशाह सलामत ने। उस पर शाही का मुहर भी था तो इसलिए वो मान गई। उसे देखा तो उसमें लिखा था कि जल्दी ही मेरी बेटी का शादी इस नौजवान से कर लो। तो वो बहुत खुश हो जाती है। जैसी महारानी को बुलाती है तो महारानी जैसी इस रोग को देख लेती है तो दोनों का एक दूसरे से बहुत मोहब्बत होता है। इससे रानी बोलती है कि क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो वो कहने लगती है क्यों नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। उसे एक दूसरे बहुत पसंद आते हैं और मौलवी को निकाह के लिए कहता है तो वो उस दोनों का निकाह करवा ही देता है। और उस लोग को कहता है कि तुम इससे शादी करोगे। तो वो कहता है क्यों नहीं, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगते हैं और ये उस दोनों का शादी खुशी खुशी से हो जाता है। और उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है, मगर इन दोनों की खुशी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं थी, क्योंकि जैसे ही बात बादशाह को पता चली तो वो दौड़ने लगता है अपने महल। और वो अपने महल आ जाता है और सोचता है कि मैं अपने दामाद को कैसे मारूंगा, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि मेरी बेटी का निकाह इससे हुआ है। और वो दोनों खूब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो बादशाह एक तरकीब सोचने लगता है और कहता है उसे, उस रोग को बुला लेता है कि आपकी जो बीवी है इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, एक हफ्ते में मर जाएगी। तो वो उसे कहता है कि ये हो। तो वो बादशाह से कहने लगता है कि इसकी कोई तरकीब है, मुझे बताओ, मैं वो करूँगा। तो बादशाह उसे कहने लगता है कि तुम्हें एक शैतान की 3 सुनहरे बाल लाने होंगे, वो बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक। वो अपना सफ़र शुरू करने लगता है उसे कहता है कि मैं वो बाल लेकर आऊँगा। तो वो जाने लगता है सफ़र में, और सफ़र में जाते 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 वो पहले पड़ाव के पास आ जाता है। वहाँ एक चौकीदार होता है, उसे कहने लगता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो कहने लगता है क्या, उससे वो कहने लगता है वो चौकीदार कि क्यों, ये फव्वारा हमें वो अंगूर का रस देने लगता था, अब वो क्यों पानी तक नहीं देता। तो वो उसे रोको से बहुत सोचता है, उसे बताता है कि जो मुझे इस सवाल करने पर मजबूर कर देता है तो वो एक बकरी बन जाएगा, मैं आते हुए आपको ये जवाब दे दूंगा।
तो वो सोचने लगता है कि अब मैं बकरी, तो वो उसे अंदर जाने देता है। तो वो जाता है एक पड़ाव तो उसने पार कर दिया था, मगर वो जल्दी दूसरे पड़ाव तक पहुंचता है। वो उसे दूसरा चौकीदार उसे कहता है कि पहले पहले तो ये दरख्त हमें सोने का फल देता था, आप अब इसमें एक पत्ता भी नहीं है, मुझे जवाब दो। तो उसे कहने लगता है जो मुझसे सवाल करेगा वो बकरी बन जाएगा। तो वो भी उसे जाने देता है। वो तीसरा एक तो वो किश्ती के मल्लाह के पास आता है। तो मल्लाह उससे तीसरा सवाल पूछता है कि मुझे ये बताओ क्यों मैं इस लोगों को इस तरफ उस तरफ पहुंचाता हूँ और इसके बदले मुझे क्या मिलता है। तो वो रोक उसे बताता है कि जो मुझे सवाल करने पर मजबूर करेगा वो बकरी बन जाएगा। मैं आते हुए आपको भी सवाल का जवाब दूंगा, दूसरों को भी। तो वो सोचने लगता है कि ठीक है, मैं बकरी बनना नहीं चाहता। तो वो रोक को सवार करने देता है और उसको दूसरी तरफ ले जाने लगता है। और वो दूसरी तरफ उसको छोड़ देता है कि कहता है कि आते हुए मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। वो जैसे आता है तो शैतान की दादी वो आम को वो दरख्त से आम तोड़ने लगती है। तो वो कहता है कि शैतान आ गया। तो वो उसे कहता है कि उससे उस दादी को लगता है कि शैतान आ गया, तो वो आम छुपा लेती है और उसे कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं तो समझा कि मेरा पोता शैतान है, इसलिए मैं डर गई। उसने मुझे कहा था इस दरख्त से आम नहीं तोड़ने हैं। तो वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और उससे कहता है कि तुम मेरे जो है पोता, उससे तुम्हारा क्या काम है। तो रोक उसे बताता है कि मुझे उसके 3 सुनहरे बाल चाहिए। उसकी दादी उसे कहती है शैतान के कि क्या तुम उस सुनहरे बालों पर क्या करोगे। उस पे हंसने लगती है कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, इससे बालों से कुछ नहीं होता। तो वो उस लिए जो रोक होता है वो बहुत समझदार होता है, उससे एक सौदा कर लेता है। तुम मुझे उसके 3 सुनहरे बाल दोगे, अगर आपने नहीं दिए तो मैं शैतान को बताऊंगा कि आपकी दादी जो बाहर आम का बड़ा दरख्त है उससे आम तोड़ रही थी। तो वो कहता है उसकी शैतान की दादी कि तुम बहुत चालाक बच्चा हो, चलो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। तो वो उसके लिए वो कहता है कि अभी शैतान आ जाएगा, तुम चुप जाओ। जैसे शैतान आता है तो वो सोने लगता है। तो उसकी दादी आ जाती है और उसके सर से एक बाल खींच लेती है। 3 सुनहरे बाल थे, उससे सर से एक छीन लेती है। तो शैतान जाग जाता है। उसकी दादी उसे कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा। वो शैतान कहता है दादी आपने मुझे नींद से उठाया, क्या ख्वाब देखा। उसने बताया कि पहले वहाँ से अंगूर के जो फव्वारा था उससे अंगूर का रस निकलता था, अब क्यों नहीं। उसके शैतान उसे कहता है वहाँ एक मेंढक है, उसे निकाल दिया जाए, वो कर देगा। तो उसका दादी उसके दूसरे बाल निकाल लेती है। उसे कहता है कि पहले वहाँ एक दरख्त था जिस पे सोने के आम उगलते थे, अभी कुछ नहीं होता। तो वो कहने लगता है एक चूहा है जो उसके जड़ें काट रहा है, उस चूहे को वहां से भगाया जाए तो वो फिर से सेब देने लगेगा। तो शैतान उसे तीसरा बाल भी दे देता है। तो उसकी दादी कहते हैं मैंने एक और ख्वाब भी देखा था, वहाँ एक जो है सुनार है, वो वहाँ किश्ती ले जाता है, लोगों को ले जाता आता है। उसे क्या मिलता है, वो कहता है उसको एक बद्दुआ लगी है, वो जैसे अपना सुनार किसी को पकड़ाएगा तो वो आज़ाद हो जाएगा। वो शैतान उसे तीसरा बाल दे देता है कि तुम मुझे फिर से उठाओगे, मुझे भी सोने दो। तो उसकी दादी कहते हैं हाँ हाँ अभी तुम सो जाओ, मेरे सारे नींद पूरे हो गए। वो दादी वहाँ वहाँ छुप के सुन रहा था सारे बातें, वो रोक ने सारी बातें सुन ली थी। वो दादी उसे फिर से बड़ा कर लेता है और उसको वो 3 बाल सुनहरे बाल दे देता है कि तुम तीनों बाल ले लो और जो आपसे सवाल पूछता है उसके जवाब दे। तो वो 3 बाल जैसे उसको दे देता है रोक को, और रोक दादी को सलाम कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। और जैसे किश्ती में बैठता है तो वो किश्ती वाला
उससे सवाल पूछता है कि हाँ मुझे अभी जवाब दे दो क्योंकि तुम अभी आए हो। वो कहता है कि तुम्हें एक बद्दुआ लगी है, अपने सोनार किसी को पकड़ा दो तो वो तुम आज़ाद हो जाओगे। वो कहने लगता है क्यों नहीं, मैं किसी को पकड़ा दूंगा। और वो उसे सलाम कहते हुए जाने लगता है। वो जैसे दूसरे गेट तक जाता है तो वहाँ उससे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि हाँ तुम मुझे बताओ कि तुम आपने मेरे जवाब लाया है कि नहीं। तो वो कहने लगता है उसे दूसरे के तुम यहाँ एक चूहा है जो इस दरख्त के जड़ें काट रहा है, तुम उस चूहे को भगाओ तो वो फिर से सेब और आम देने लगेगा। तो वो कहने लगता है क्यों नहीं। वो जैसे देख लेता है वो जगह थोड़ा खोद लेता है तो वहाँ एक चूहा निकल आता है और वो उस चूहे को भगा लेते हैं। तो वहाँ बहुत जल्दी ही आम और सेब होते हैं। तो वो गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और रोग को बहुत ज़्यादा सोना दे देते हैं, 2 बोरियां, और उसे एक घोड़ा दे देते हैं। जैसे वो पहले पड़ाव में आ जाता है तो वहाँ उससे पहला चौकीदार उससे पूछने लगता है कि यहाँ पहले अंगूर का रस आता था, अब क्यों नहीं आ रहा, अब पानी भी नहीं आ रहा। तो वो उसे बता देता है कि यहाँ एक मेंढक है, उसे भगाओ। वो देख लेता है, वो मेंढक को भगा लेते हैं। वहाँ गांव के लोग उसे 2 बोरियां और सोना देते हैं और वो आने लगता है बहुत खुश। दोनों गांव के लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो महल पहुँचने लगता है वो बादशाह इतना सोना देख के बहुत हैरान होता है कि ये कहाँ से लाया। रोग उसे सारा कहानी बता देता है कि वहाँ रोग को सारा बात पता चल चुका था कि ये मुझे मारने लगा था। तो वो रोग उसे कहता है कि तुम जाओ वहाँ। तो वो सारा बात बताने लगता है और उसे 3 सुनहरे बाल भी दिखा देता है। तो वो बादशाह बहुत जल्दी में आता है और कहता है कि मैं भी इतना सोना लाऊंगा। वो जैसे ही 2 पड़ाव को पार करने लगता है वो बादशाह रोग को कहता है कि मैं इससे ज़्यादा सोना लाऊंगा। रोग तो बहुत चालाक होता है। वो कहने लगता है तुम बहुत तेज़ी से हो गया और जैसे उस सोनार का वो जैसी किश्ती ली तो वो वहाँ फंस गया। और ये रोग और दो बहुत खुशी से होने लगे। वो अपने पहले माँ बाप से भी मिलते हैं और उसको बहुत आला ज़िंदगी दे देते हैं और अपने दूसरे जिसने उसको पाला था उससे भी मिल लेते हैं और सबको अपने महल में ला देते हैं। और वो उस महल का बहुत बड़ा वजीर बन जाता है और अपने रानी को बहुत अच्छे से रखता है और वो सारे सारे शहर का बादशाह बन जाता है और लोग उससे बहुत तारीफ करते हैं। और रही उस बादशाह की कहानी तो वो आज भी उस किश्ती में बैठ के समंदर में लोगों को ले जाता और आता है। तो बच्चों, हमें किसी का बुरा नहीं और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें मिलजुल के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये आज की सारी कहानी का मोरल।